This line came from upside to a LA lighting arrestor, you can call it surge arrestor, and from this surge arrestor this connection goes to a PT, capacity voltage transformer, CVT, we can call it CVT, and this connection go through, I mean, how can you be sure this is a VT? This connection go directly through that. Look at the connection from this is a PT, I mean CVT, and then from this it's connected to a disconnector. Now this connector is in open position, and from this disconnector it goes to the CT, current transformer. This is a current transformer. ABB make current transformer. This all the equipment is from ABB, the LA, the PT, CVT, this CT, and from this CT the connection goes to the 145 kV circuit breaker. This is 145 kV circuit breaker template. From this connection it goes to another disconnector, and from this disconnector it goes to the bus, it connected to the bus, and again this is another disconnector, this also connected with the bus, and that is another disconnector, this also, and that is another CT. This is a bus coupler basically, and another disconnector, and from here you can see there is a capacitor bank here. We are not sure, this is maybe ABB make capacitor bank, I don't know yet, you can check it. Yes, no, this is ABB make capacitor bank, but this is made by, I mean the installation commissioning is by Energy Pack, and this is transformer, maybe this is not energized, those transformers are energized. Those are energized transformers. This transformer is 132 to 33 kV. Hyosung. This is Hyosung make transformer. You can see from here 132 to 33. 2541 MVA, and this also came from that 145, I mean 132 kV bus from those side, and this side is 33 kV. You can see the 33 kV bus system. From here the this whole connection goes to the 33 kV consumer end. Look at the 33 kV bus. This is 33 kV CT, not this, the middle one, and that after that this is 33 kV outdoor circuit breaker. This is also ABB make circuit breaker, made by ABB, maybe Indian make. From this circuit breaker, the disconnector, the bus, from this bus the connection goes to another 33 kV outdoor breaker, then to the tower. This is another connection came from 132 kV line, that is web trap. The far one is LA, and that after that is
PT, the fat one, and then this connection goes to the upper, and then this came by the wave trap, I mean this through wave trap, and after that there is a disconnector, I mean the middle one, this is disconnector, and then it comes to a circuit breaker. This circuit breaker, from this circuit breaker it goes to another CT, then another disconnector, the bus cup, then through that disconnector again to a CT, and then transformer. Have described a bit about this portion of grid station. अब आफ्टर दिस जब 11 kV में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो अब ये जो वायर्स यहाँ से निकल रही होती हैं फीडर्स में जाती हैं, और फीडर्स के थ्रू आगे हर एक एरिया में जा रही होती हैं। तो वहाँ की तरफ अब देखते हैं वहाँ कैसे हालात। ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है इन्होंने 100 kVA का, जो ये अपनी एनर्जी यहाँ पे खुद ग्रिड स्टेशन के अंदर इन्होंने पंखे वगैरह चलाने होते हैं या काफ़ी चीज़ें, तो वो इस ट्रांसफार्मर से 11 kVA से 220 में कर रहे हैं ताकि ये खुद यूज़ कर सकें। एक ये लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, जो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए होता है। अब आगे फीडर्स की तरफ जाते हैं। ये अब वो फीडर्स हैं, ये पीछे से इसके वायर्स आके इस तरह अंडरग्राउंड वायर्स आ रही हैं, और ये हर फीडर के साथ जा करके कनेक्टेड है। अंदर से 4 ट्रांसफार्मर है, चारों से निकलेंगे और यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएंगे। और वो जो कैपेसिटर बैंक्स थे पीछे लगे हुए, उन कनेक्शन का, उन कैपेसिटर बैंक्स का कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है कि हर ट्रांसफार्मर के साथ जितने कनेक्शन होने। अब जिस तरह ये सारे हैं, ये सब ये हर एरिया का ये फीडर है। जिस तरह इस्लामाबाद क्लब की तरफ जा रहा है, इस्लामाबाद क्लब को ये सप्लाई कर रहा है, और ये इसका मीटर लगा हुआ है कि कितना KVA इस्लामाबाद क्लब में यूज़ हो रहे हैं, और उसके पास एरिया में जिसको ये कवर कर रहा है। और ये ओवरऑल मीटर है जो जिस पे भी यही रीडिंग होती है, पर ये एक किस्म का अकॉर्डिंग टू दैम एक क्रॉस चेक के लिए लगाया होता है कि क्रॉस चेक किया जा रहा है कि सही हो भी रहा है या नहीं। इसी तरह ये PM हाउस जा रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिजली बंद हो जाए, मतलब अब तो नहीं चाहते ना, क्योंकि अब तो इमरान खान अगर गंजा होता तो उसकी बारी हम चाह रहे होते तो हम ये कर सकते थे। ये वहाँ के कितनी हो रही है, वही सारा कुछ वही सीन है। उसके बाद ये इसी तरह ये वाने सदर जा रही है। हर फीडर अपना अपना एरिया कवर कर रहा होता है, और ये इसके ऊपर लगे हुए हैं कुछ रिले सिस्टम कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये इस तरह करके ट्रिप कर जाते हैं कि जहाँ पे कोई फॉल्ट आएगा ना, तो ट्रांसफार्मर वगैरह को बचाने के लिए यहाँ से ट्रिप कर जाएंगी और सप्लाई खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगी। रेड ब्लू ग्रीन, ये ऊपर रेड येलो और ब्लू आई गेस तीनों के लिए ये होती हैं रिलेज लगी हुई तीनों लाइंस के लिए। ये सब इस तरह करके इस तरह यहाँ पे बस कपलर होता है। ये बस कपलर का काम ये है कि अगर एक ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो जाता है या किसी तरीके से एक ट्रांसफार्मर को पे कोई काम आ गया, तो हम इस बस कपलर के थ्रू ये करते हैं कि जो इधर वाला एरिया जा रहा है, जो दूसरे ट्रांसफार्मर से सप्लाई किया जा रहा है, जिस तरह दूसरे शक्करपड़ियाँ जिस तरह शक्करपड़ियाँ की तरफ जा रहा है, ये सारे दूसरे सब ट्रांसफार्मर के हैं। हम चाहते हैं कि उसी ट्रांसफार्मर पे फिर इस वाले सारे एरिया को सप्लाई देना शुरू कर देते हैं ताकि ये वाला एरिया सारा बंद ना हो। अब देखें जिस तरह यहाँ पे PM हाउस था और यहाँ पे PTV था, अब यहाँ पर का अगर हम बंद कर देंगे सप्लाई तो फिर चपेटें मतलब पड़ेंगी, तो इसलिए आपडा वालों को तो उन्होंने यहाँ से इस ट्रांसफार्मर के थ्रू ले आते हैं। इसी तरह आगे हर ट्रांसफार्मर से जिस एरिया पे कवर कर रहे हैं उनका फीडर है। ये स्टेट बैंक की तरफ जा रहा है, ये इस्लामाबाद क्लब, ये कोहसार हाउस, ये मेलोडी जा रहा है। ये इस तरह करके सारे फीडर्स अपने, और सब अपना अपना ट्रिपर्स लगे हुए हैं, सबकी रिलेज लगी हुई हैं। और ये इसी तरह करके अगर कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ जो फीडर है चीखें मारना स्टार्ट कर देता है और ये ट्रिप कर जाती है। यही था, हर का अपना कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन है, और इसी तरह ये सारा सीन। ये यहाँ का बैटरी रूम है, यहाँ से 110 वोल्ट है, 2-2 वोल्ट के सारे सेल लगे हुए हैं। जितनी भी इंटरनल DC यूज़ हो रही है अंदर, जिस तरह रिलेज को ऑपरेट करने में हो रही है, और भी बस पैनल में जितनी जहाँ पे भी रिलेज लगी हुई है वहाँ पे 110 वोल्ट की रिले लगी हुई है। तो और भी काफ़ी जगह हैं, और इन्होंने इमरजेंसी सिस्टम भी बनाया हुआ है इसके ऊपर,
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये हर सेल को चेक करने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए कि वो सेल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए ये होता है हमसा, जिसके ऊपर मार्किंग भी हुई भी होती है। तकरीबन आई गेस 1200 से ऊपर होनी चाहिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर सेल सही काम कर रहा है तो। ये 55